اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ آباد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد بن ولید کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس کے بعد وہ مدینے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد بن ولید کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو۔ لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی، خالد، جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد بن ولید نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ اس کے ساتھ ہی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ لو جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ مارکا ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد بن ولید دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ اور مصعب بن عمیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک ام عمارہ تھی اور دوسری ام ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ام ایمن آپ علیہ السلام کے بچپن میں آپ کی دائیا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ خالد بن ولید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس کے بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکا سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔
उसने मुसलमानों पर अकब से हमला किया। उसने बर्छी से मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। उसकी बर्छी जब किसी मुसलमान के जिस्म में दाखिल होती तो वो चिल्ला कर कहता, मैं हूं अबू सुलेमान। हर बर्छी के वार के साथ उसकी ललकार सुनाई देती थी कि मैं हूं अबू सुलेमान। आज 4 बरस के बाद जब वो मुसलमानों के मरकज मदीना की जानिब जा रहा था तो उसे अपनी ही ललकार सुनाई दे रही थी, मैं हूं अबू सुलेमान। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी बर्छी कितने मुसलमानों के जिस्मों में उतरी थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया था। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान से निकल चुके हैं और इकरिमा मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ चला गया है। हकीकत भी यही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान खत्म हो चुकी थी और मार्के की सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों को असर नौ मुनज़्ज़म नहीं कर सकते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मैदान जंग से निकलना भी न चाहते थे। हालांकि सूरत हाल ऐसी थी कि पसपाई के अलावा कोई चारा न था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम किसी बेहतर पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कुरैश आपको ढूंढ रहे होंगे और आपके गुरोह पर बड़ा शदीद हमला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आपके साथियों ने आपको अपने हल्के में ले रखा था। आप अलैहिस्सलाम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि इकरिमा ने अपने घुड़सवारों से आप अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। कुरैश के एक प्यादा जैश को किसी तरह पता चल गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकरिमा ने हमला कर दिया है, तो कुरैश का ये प्यादा जैश भी आप अलैहिस्सलाम के गुरोह पर टूट पड़ा। आप अलैहिस्सलाम के और आपके किसी एक भी साथी के बच निकलने का सवाल ही खत्म हो गया था। आपके 30 साथियों ने और उन 2 खवातीन ने जो आप अलैहिस्सलाम के साथ थी, आपके गिर्द गोश्त पोस्ट की दीवार खड़ी कर दी। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि रसूलुल्लाह जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी मशहूर थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि आप अलैहिस्सलाम ने अरब के माने हुए पहलवान रिकाना को 3 बार उठाकर पटखा था। अब मैदान जंग में उनकी ताकत के एक और मुजाहिरे का वक्त आ गया था। गोश्त पोस्ट की वो दीवार जो आप अलैहिस्सलाम के फिदाइन ने आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द खड़ी कर दी थी, उसे आपने खुद तोड़ा। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में कमान थी, तरकश में तीर भी थे। उस वक्त खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बड़े हिस्से में उलझा हुआ था। उसे जब बाद में बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 30 साथी और 2 औरतें कुरैश के घुड़सवारों और प्यादों के मुकाबले में जम गए थे, तो खालिद ने बड़ी मुश्किल से यकीन किया। उसने एक बार फिर कहा था कि ये ताकत जिस्मानी नहीं हो सकती, ये कोई और ही ताकत है। उस वक्त से एक सवाल उसे परेशान कर रहा था कि क्या अकीदा ताकत बन सकता है। वो अपने कबीले में किसी से इस सवाल का जवाब नहीं ले सकता था, क्योंकि फौरन ये इल्जाम आयद हो सकता था कि उस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू असर कर गया है। आज वो यही सवाल अपने जहन में लिए मदीना की तरफ जा रहा था। ओहद की पहाड़ी उफक से ऊपर उठाई थी। 4 बरस पुरानी यादें उसे फिर उस पहाड़ी के दामन में ले गईं, जहां उसे अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, अबू सुलेमान, अबू सुलेमान। वो अपने तसव्वुर में देखने लगा कि उन 30 आदमियों और 2 औरतों ने इतने सारे घुड़सवारों और प्यादों का मुकाबला किस तरह किया होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से तीर बरसा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ ही बढ़ चढ़कर आपको अपने हल्के में ले लेते। एक मौरिख मुगाजी की तहरीर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अपने गिर्द हल्के को बार बार तोड़ते और जिधर से दुश्मन उनकी तरफ बढ़ता उस तरफ तीर चलाते। आप अलैहिस्सलाम की जिस्मानी ताकत आम इंसान के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम कमान को इस कदर जोर से खींचते थे कि आप अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ तीर जिस जिस्म में लगता था, तीर की नोक उस जिस्म के दूसरी तरफ निकल जाती। आप अलैहिस्सलाम ने इस कदर तीर चलाए थे कि एक तीर चलाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने कमान को खींचा तो कमान टूट गई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने तरकश में बचे हुए तीर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिए। साद बिन अबी वक्कास के निशाने का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। खुद आप अलैहिस्सलाम भी साद रज़ियल्लाहु अन्हु के निशाने को तस्लीम करते थे। उधर मुसलमान अबू सुफियान और खालिद के हाथों कट रहे थे और खून का आखिरी कतरा बह जाने तक मुकाबला कर रहे थे। इधर आप अलैहिस्सलाम के 30 फिदाइन और 2 खवातीन की बेजिगरी का ये आलम था जैसे उनके जिस्म नहीं उनकी रूहें लड़ रही हों। मशहूर मौरिख तबरी लिखता है कि एक एक मुसलमान ने बैक वक्त 4-4, 5-5 कुरैश का मुकाबला किया। उनका अंदाज ऐसा दहशतनाक था कि कुरैश पीछे हट जाते या उन पर हमला करने वाला अकेला मुसलमान जख्मों से चूर होकर गिर पड़ता। कुरैश ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइन की शुजाअत का ये आलम देखा
तो कुछ पीछे हटकर उन पर तीरों के साथ पत्थर भी बरसाने लगे। उसके साथ ही कुरैश के चंद एक घुड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते आप अलैहिस्सलाम पर हमलावर हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के साथियों के तीर उनके जिस्मों में उतरकर उन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते। इस सूरत हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मेह बरसा दिया। खालिद बिन वलीद को इक्रिमा ने बताया था कि अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए। उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दुजाना बैक वक्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वक्कास को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से तीर बरसा रहे थे। उसके साथ ही अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई न देख सका कि अबू दुजाना किस हाल में है। जब अबू दुजाना गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खारपुश्त की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप अलैहिस्सलाम के कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन इक्रिमा और उसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न मिला। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने पूछा, कौन है वो या रसूल अल्लाह? क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वो मुझे कत्ल करने आएगा, उसे अब तक आ जाना चाहिए। सहाबी ने पूछा, लेकिन वो है कौन? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उबई बिन खलफ। उबई बिन खलफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफिन में से था। वो मदीने का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो एक रोज वो आप अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आप अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उबई बिन खलफ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूं? मेरी बात गौर से सुन लो मोहम्मद, किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। इसे मैं उस वक्त के लिए मोटा ताजा कर रहा हूँ जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखने छोड़ दो, मैं इसी घोड़े पर सवार हूँगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे, और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा था, उबई, जिंदगी और मौत उस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा है। ऐसी बात मुंह से न निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा न कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। उबई बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंजिया हंसी हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब ओहद के मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबई बिन खलफ याद आ गया। जो ही आप अलैहिस्सलाम ने उसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया। सबने उधर देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मेरे अजीज साथियों, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है उबई ही होगा। अगर वो उबई ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, उसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मौरखीन वाक़िदी, मुग़ाज़ी और इब्न हिशाम ने लिखा है कि वो सवार उबई बिन खलफ ही था। उसने ललकार कर कहा, संभल जा मोहम्मद, उबई आ गया है। ये देख, मैं उसी घोड़े पर सवार हूँ जो तुम्हें दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाजत दें कि इसे हम आपके करीब आने तक खत्म कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खौत थी। उसकी जंजीरें आप अलैहिस्सलाम के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थी। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में बर्छी थी और तलवार न्याम में थी। उबई का घोड़ा करीब आ गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, आगे आ जा उबई, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। उबई बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका और तंजिया कह कहा लगाया। उसे शायद पूरा यकीन था कि वो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा। उसकी तलवार अभी न्याम में थी। आप अलैहिस्सलाम उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप अलैहिस्सलाम जमीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आप अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया।
आप अलैहिस्सलाम की बर्छी की अन्नी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मौरिख लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इतना कारी न था कि उबई जैसा कवी हैकल आदमी उठ न सकता। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े की दूसरी तरफ गिरा था, उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आप अलैहिस्सलाम का वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है, ऐ अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। कुरैश के कुछ आदमियों ने उसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया, जख्म बिल्कुल मामूली है। लेकिन उस पर न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई थी कि उसकी जबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं उसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मौरिख इब्न हिशाम ने जहां तक लिखा है कि उबई ने ये अल्फाज भी कहे थे, अगर मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा न रह सकता। जब उहुद का मार्का खत्म हो गया तो उबई कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो उबई मर गया। खालिद को आज 4 बरस के बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा। उहुद के मार्के को हुए 4 बरस हो चुके थे। खालिद बिन वलीद को आज 4 बरस के बाद वो वक्त कल की तरह याद था। वो अभी मुसलमान नहीं थे। उन्हें यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जाने कुर्बान कर रहे थे उसने खालिद बिन वलीद को परेशान कर दिया था। यूं लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा थे। खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उस खूरेज मार्के में अबू सुफियान को तलाश करता उस तक पहुंचा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या हम मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? क्या कुरैश की माओं के दूध नाकिस थे कि ये इन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा हुए जा रहे हैं? अबू सुफियान ने कहा, देखो खालिद, जब तक मोहम्मद उनके साथ है और वो जिंदा सलामत है, ये खून का आखिरी कतरा बह जाने तक शिकस्त नहीं खाएंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, तो ये फर्ज मुझे क्यों नहीं सौंप देते? अबू सुफियान ने कहा, नहीं, तुम अपने सवारों के पास जाओ, तुम्हारी क़यादत के बगैर वो बिखर जाएंगे। मोहम्मद और उसके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को अफसोस हो रहा था कि अबू सुफियान ने उसके एक अज़्म को कुचल डाला था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को वो अपना फर्ज समझता था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हुबल और उज़ा की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। उसने अपने सालार का हुक्म मानना जरूरी समझा और अपने सवार दस्ते की तरफ चला गया। उसे इत्मीनान जरूर था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब चंद एक साथी ही रह गए होंगे और आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं होंगे। खालिद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। उसने जरा बुलंदी से देखा था कि उहुद के दामन में दूर दूर तक जमीन खून से लाल हो गई थी। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाए हुए इंसान कर्राह रहे थे। जख्मियों को उठाने का अभी किसी को होश न था। फिर उसने देखा प्यादा कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के साथियों का हल्का भी तोड़ लिया था। कुरैश के 3 आदमी उतबा बिन अबी वकास, अब्दुल्लाह बिन शहाब और इब्ने कुमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब सूरत ये थी कि उतबा के सगे भाई साद बिन अबी वकास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ रहे थे। रसूल अकरम के साथियों की तादाद न होने के बराबर रह गई थी या वो लड़ते लड़ते बिखर गए थे। उतबा ने आप अलैहिस्सलाम पर जो पत्थर बरसाए उनसे आप अलैहिस्सलाम के नीचे वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ भी जख्मी हो गया। अब्दुल्लाह के पत्थर से आप अलैहिस्सलाम की पेशानी पर खासा गहरा जख्म आया। इब्ने कुमा ने आप अलैहिस्सलाम के करीब आकर इतनी जोर से पत्थर मारा कि आप अलैहिस्सलाम की खोद की जंजीर की 2 कड़ियां टूटकर रुखसार में उतर गईं। उनसे रुखसार की हड्डी भी बुरी तरह मजरूह हुई। आप अलैहिस्सलाम ने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आप अलैहिस्सलाम का खून इतना निकल गया था कि आप अलैहिस्सलाम गिर पड़े। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो कुरैश के दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे, देख लिया और दौड़ते हुए आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उनकी ललकार पर उनके दूसरे साथी भी आ गए। वो आप अलैहिस्सलाम को पत्थरों से गिराने वाले कुरैश आप अलैहिस्सलाम पर तलवारों से हमला करने ही वाले थे कि साद बिन अबी वकास ने अपने सगे भाई उतबा पर हमला कर दिया। उतबा अपने भाई का गैज़ व ग़ज़ब देखकर भाग निकला। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। आप अलैहिस्सलाम पूरी तरह से होश में थे।
इस दौरान आप अलैहिस्सलाम के साथियों ने उन आदमियों को भगा दिया था जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। मौरिख लिखते हैं कि साद बिन अबी वक्कास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद कहते थे, मैं अपने भाई को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूँ जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर हमला किया। वो अकेले ही कुरैश की तरफ दौड़ने की कोशिश करते थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रुकने का हुक्म न देते तो वो कभी न रुकते। कुरैश गालिबन बहुत ही थक गए थे। वो मार्के से मुंह मोड़ गए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आप अलैहिस्सलाम के जख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो खवातीन आप अलैहिस्सलाम के साथ थीं, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया, कपड़ों से जख्म साफ किए। उस वक्त ये देखा गया कि खोद की जंजीरों की टूटी हुई कड़ियां आप अलैहिस्सलाम के रुखसार की हड्डी में उतरी हुई। एक सहाबी अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अरब के एक मशहूर जर्राह के फर्जंद थे, आगे बढ़े और आप अलैहिस्सलाम के रुखसारों से कड़ियां निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियां न निकली। आखिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दांतों की मदद से एक कड़ी निकाल ली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबू उबैदा के सामने के 2 दांत टूट गए। उसके बाद से लोगों ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अल असरम कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है वो आदमी जिसके सामने वाले दांत ना हो। फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि उसके बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे खूबसूरत दिखते थे कि उनके चेहरे से निगाह नहीं हटती थी। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप अलैहिस्सलाम की दाइया रह चुकी थी। इस्लामिक शॉर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।